आ जाओ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो प्लीज। An object immersed in a liquid tank experiences an upthrust. What is the physical reason for this upthrust? जनाब, Answer the pressure. द C1 राइट, द प्रेशर इन द लिक्विड इज इंक्रीज विद Yes. द डेप्थ, राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब चलो। अस्यूम, अच्छा इसको इसके ऊपर आओ, ये कर लो। The diagram shows two vessels P and Q with both both with sides inclined at 45 degrees. Vessel P tapers outward and vessel Q tapers inward as shown. Both vessels contain a liquid. The depth of the liquid in the vessels is the same. The liquid in vessel P is twice as dense as the liquid in vessel Q. What is the ratio pressure due to the liquid on base of P over pressure due to liquid on base of Q? अच्छा जी, क्या कहते हो इसके अंदर? वैसे जो है उसने कहा हुआ है कि पी इज ट्वाइस एज डेंस एज लिक्विड क्यू। तो पी रो जी एच अगर लगाओ, अब दोनों के अंदर वर्टिकल हाइट सेम है, राइट। सो आपके पास जो है पहले वाले के अंदर ट्वाइस है, तो मेरे ख्याल से तो ए आना चाहिए, नहीं क्या बोलते हो? What's प्रेशर तो the हम्म। yes? But sir, why would they give the taper then? हम्म, अगर हम उसको कंसिडर करें, सो अब वो जो है 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, ओके। और लेकिन यार उसमें कुछ हो नहीं सकता अगर हम सोचें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे डिपेंडेंट है। सही है। अच्छा जी, लेट मी सी द आंसर क्या आ रहा है। ए ही आ रहा है। Okay, और sir, कोई so it will चीज़? just be हाँ, जस्ट ट्वाइस द डेंसिटी ना, रो जी एच, सो एच ऑलवेज बी द वर्टिकल डिस्टेंस। सही है, चलो खैर आगे आ जाओ, ये वाला कर लो। a cylindrical block of wood has cross-sectional area A and weight W. It is totally immersed in the water with its axis vertical. The block experiences pressure P, PT, and PB at the top and the bottom of surface, respectively, which expression is equal to the upthrust on the block. हम्म, अच्छा जी, अब थ्रस्ट इज बेसिकली रो जी एंड द वॉल्यूम, राइट? H. नहीं, नॉट एच, अब थ्रस्ट इज फोर्स, सो रो जी वी द Okay. वॉल्यूम। गेटिंग दैट? Yes, yes. I thought you were talking about pressure. ओके। So if you consider the equation as a change in density, change in pressure, so P is equals to the pressure at the bottom minus the pressure at the top, right? The same thing we did in the class, right? Abhi abhi. And pressure at the bottom can be written as force over area and PB minus PT, okay? And when you shift A that side, so you'll get that this is this value, okay? See, समझ लो ना भाई? Yes. चलिए आगे Force आ over जाओ। area. हम्म। A pipe is closed at one end and contains gas trapped by a column of water. The atmospheric pressure is 1 exponent 5 pascals. The density of water is 1000 kg meter inverse cube. What is the pressure of the gas? Use G equals 10 meter per second square. जनाब, हम्म, क्या करोगे भाई? We will use the same formula as before. अच्छा, अच्छा अगर अगर तो आप अरे कहाँ गया? सही। सो अगर तो आप ऐसा करो, सही है।
अगर हम इसको देखें सो बेसिकली यहाँ पे ये वाला लिक्विड ऊपर है, राइट, ये वाला लिक्विड ऊपर है, सही है, और यहाँ पे गैस है, सही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उन्होंने कहा कंटेन गैस, ओके, व्हाट इज द, ओके फाइन। सो अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस मच हाइट ऑफ लिक्विड causes the pressure, okay. So at the right hand side, the pressure due to air, right, plus the pressure due to liquid should be equal to this pressure due to the gas, okay. So it should be equal to the pressure due to gas. आप समझ पा रहे हो? Getting the equation? Yes. Fine. So the atmospheric pressure is 1 exponent 5 pascals plus the pressure due to liquid. So for the liquid you have to use rho gh, okay. So rho is 10, okay. G is 5, you have to consider 5, the vertical distance, okay. The vertical distance, yes, the vertical distance 5, and the height, sorry, G is 10, okay. जरा ऐड कर लो कितना बनता है? 105,000. 105,000, meaning 1.05 exponent 5. 1.05. It's not the answer, any. No such answer. Oh wait, कैसे sir, I है? did 100, but 55,000 आएगा, 50,000 आएगा ना, so it will 1.5 लाख be आएगा टोटल. 1.5 exponent 6, sir. C. Yes, fine, fine. Always remember you have to consider the vertical distance. Fine. चलो आगे आ जाओ, ये कर लो प्लीज. The diagram represents a sphere underwater. P, Q, R, S are forces acting on the sphere due to the pressure of the water. Each force acts perpendicularly to the sphere surface. P and R act on opposite directions vertically, and QS act on opposite directions horizontally. Which information about magnitudes of the force is correct? जनाब. सो क्या कर सकते हैं इसके अंदर जो है वो हम, हम्म, हम्म, अच्छा, so P will going to be the weight, right, and No, yeah, R, will they not? okay, okay, fine, बोलो बोलो. हम्म, क्या बोलो, कुछ तो बोलो यार. देखो अगर तो आप ऐसा सोचो कि ऑल द फोर्सेस आर ड्यू टू द वाटर, ओके, sphere under water are forces acting on the sphere due to the pressure. So if all the forces are due to the water, they mention it, okay, due to the water, okay. इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है कि the force acting on the sphere due to the pressure of the water, okay. So you know that at the same height, at this same height, the pressure will going to be the same, right? So the force will also going to be the same. So S and Q should be equal. S and Q should be equal, right? Are you getting that? And as your depth increases, your force or your pressure at the bottom will always be greater than the pressure or the force at the top. Okay, so your R will always be um, greater than P. Clear? So let me see. S is Q. Okay, R is greater than R. P is greater than A. Okay, fine. A. Okay, clear? Yes, sir. चलो. करिए भी नहीं, आसान सा हो जाएगा. ओह हो, टाइट क्वेश्चन आ गया. ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है यार. चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं होता ही नहीं होता. यस. Two bulbs X and Y containing air at different pressures are connected to a tube P which contains two mercury threads.
The density of mercury is 13,600 kg meter inverse cube, but which pair of values H1 and H2 is possible? हम्म चलो क्या करेंगे? एनी आइडिया? सो अगर मैं ये कहूँ दैट देयर इज सम प्रेशर पी राइट हियर, ओके, सो अब राइट साइड पे जो है, सॉरी इसके लेफ्ट साइड पे जो है मेरे पास 16,000 का प्रेशर है। सो योर राइट साइड पे मेरे पास दो प्रेशर है। वन ऑफ द प्रेशर इज रो G and H1 plus P. Okay, this is one equation. And the other equation would be 8,000 on the right hand side should be equal to rho G H2 plus P. Okay, P remains the same क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। एंड अगर हम P को P में इक्वेट कर दें, सो 1600 माइनस rho G H1 should be equal to 800 minus rho G H2. Okay, so if we subtract, और अगर हम इसको वहाँ लेके जाएं, so 1600 minus 800 is equals to rho g h1 minus rho g h2। सही हो गया। एंड whatever the answer we get, अगर हम इसको डिवाइड कर दें by rho and g, rho is 1360 and g is uh, 9.81, 9.81। सही है। So we'll get the difference in h1 and h2। ज़रा निकाल दो प्लीज़। Let me see। 8,000 in the numerator and 13,600 into 9.81 और into 10 कर सकते हैं हम। So I'm getting Sir, I'm getting 5.88. okay 5.88, I'm getting 0.0588, right? Getting the same? Yes. Okay, so but they're, since they're asking for they're asking so this is 0.0599. okay 0.0599, fine। सही है। पहले क्या किया था? I used 10 instead of ओके 9.8. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो उतने ही आसपास ही आ रहा होगा, सही है। सो बट दिस इज इन मीटर्स, राइट? अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सो दिस बिकम अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर। ओके, सो Okay. हमें ये पता चल गया दैट द डिफरेंस इन H1 and H2 should be of 6 centimeter। So now A and B are not possible, right? Either C or D, right? Now we know that pressure at X is very large, right? और प्रेशर Y में जो है वो कम है, राइट? तो आपके पास जो है ये वाली जो हाइट होने वाली है, ये वाली जो हाइट होने वाली है, दिस विल ऑलवेज बी लेसर, ओके। और जो H2 होने वाली है, दिस शुड बी ग्रेटर, राइट? क्योंकि इसका इसके वहाँ पे प्रेशर कम है, तो वहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों हाइट का डिफरेंस होगा, दैट शुड बी ग्रेटर। और यहाँ पे हाइट का डिफरेंस छोटा होने वाला है, राइट? और वो जो डिफरेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. सही है। सो दैट इज वाई सी, सी और डी। एक मिनट, गलत लॉजिक बनी। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 8,000 का प्रेशर यहाँ पे है, सही है, और यहाँ पे 16,000 का है, सो 16,000 इस यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, और यहाँ पे प्रेशर सेम है, सही है। सो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होने वाला है, इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट वुड बी लार्जर। सो एच की वैल्यू लार्जर होगी, और इन दोनों का, ओके सॉरी, यहाँ से अगर हम बनाएं, अगर आप ये दो हमने इक्वेशन बनाई है, सही है, अगर हम इनको देखें, सो अगर मैं P को वहाँ ले जाऊँ, 16,000 माइनस पी इज इक्वल्स टू रो जी एच ना, राइट? सो P की Yes, कोई भी sir. वैल्यू ले लेते हैं, P की वैल्यू 10,000 ले लेते हैं, लेट्स से 10,000 आसानी के लिए, राइट? सो दिस विल गिव अस 6,000, या 10,000 नहीं, 6,000 ले लेते हैं आसानी के लिए, सही है। सो दिस विल गिव अस 10,000 प्रेशर, ओके।
Okay. सही है, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये H1 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, सो 8000 माइनस 6000 will give me 2000, okay, 2000 as rho g h2, okay. So you can see that अगर हमारा प्रेशर कम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी कम होनी चाहिए, डेप्थ भी कम होनी चाहिए, और अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है H1 वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, सो इट शुड बी टी, ओके, क्लियर हो गया, Yes, sir. परफेक्ट। चलो ये भी कर लो, ये भी मज़े का क्वेश्चन है। A beam of alpha particle collides with a lead sheet. Each alpha particle in the beam has a mass 6.6 exponent negative 27 kg and a speed of 1.5 exponent 7 meters per second. 5 exponent 4 alpha particles per second collide with the area of 1 centimeter square of lead. Almost all of the alpha particles are absorbed by the lead, so they have zero speed after the collision. What is an estimate of the average pressure exerted by the lead on the lead by the alpha particle? जनाब, अच्छा जी। सो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, राइट? Yes, So now they are saying that um janaab, so alpha particle beam of a mass, alpha particle of a mass and the speed this much, okay, and this much alpha particle collide per second, so we can say that F is basically equal to ma, right? We can use that, okay, ma. So we know the mass of one particle, we also know how many of them, and we also know how many of them in 1 second, okay. So we have the time, we have the initial speed, and they also the final speed should be zero, okay, have zero speed, okay. So mass, आप समझ पा रहे हो ना, right? yes, sir. So this is the mass of one alpha particle, right? And how many of them? So this is 5 exponent 4, and we have the speed with which they are moving is 1.5 exponent negative 7. This should be this is going to be the initial speed, and final speed is zero, but I'm just writing that way, right? अगर आप technically करोगे you'll get the negative sign, but हमें science की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, okay. So Okay, that's why I'm just ignoring it, okay. And if you divide it by 1 you'll get the same thing, okay, because per second, right, to convert it into acceleration, okay. So this is just speed, to convert it into acceleration you have to divide it by 1, and जो आपके पास एरिया है उसने क्या रखा है 1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4, राइट, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके. सो ये आपके पास आ जाएगा, प्रेशर निकाल दो प्लीज, कितना बनता है? हम्म, 4.95 exponent negative 25. 4.5 4.95 exponent negative 25. -25 तो नहीं आना चाहिए, ऐसा तो आंसर भी नहीं है। यहाँ पे 8 आ रहा है, फाइन आना तो वैसे इतना चाहिए। अच्छा जी, सॉरी दिस इज नॉट -7, सॉरी माय बैड। यस, हाउ मच? 4.95 exponent negative 11. So, sir, C. फाइन, परफेक्ट। कह रहे और करें, बस करें, क्या बोलते हो? चल रही है गाड़ी, चल रही है? Okay, sir. चला रहे, चलो। Yes, sir, that's fine. ओके, आ जाओ, ये वाला कर लो। हम्म, पढ़ भी लो यार।
थोड़ी चीज़ें आ जाएंगी। Water in the bath varies in depth from 20 centimeter at the shallow end with 30 centimeter at the end with the plug. The density of water is 1000 kg meter cube. What is the pressure of the water acting on the plug? हम्म। सही हो गया। सो आपने क्या करना है, सिंपली रो जी एच करना है। सो 10,000 इंटू 9.81 इंटू 30, राइट। वहाँ का नहीं लेना, जहाँ पे आप खड़े हो उस पे जो भी आपका वो आ रहा है वो Yes, आपने निकाल yes. ले। राइट, कितना आ रहा है? 30 times 1000 times 9.81 is giving to 294,300. 294, इतना ज़्यादा? ओके I'm getting सेंटीमीटर में, ओके ओके सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, फाइन, सही है। चलो, फाइन yeah, फाइन we'll फाइन। divide with सही। अच्छा ये कर लो। liquid Q has twice the density of liquid R at depth Q in liquid R. The pressure due to the liquid is 4 kilopascals. At what depth in liquid Q is the pressure due to the liquid is 7 kilopascals. हम्म। जनाब क्या करें? डेंसिटी आपको ट्वाइस दी हुई है। ओके, चलो करने की कोशिश करते हैं। Now how will we do this then? What? लेट्स ट्राई। सो सो लिक्विड क्यू के लिए अगर हम लिखें, व्हाट इज द प्रेशर ना, सो लिक्विड क्यू का अगर हम प्रेशर लिखें, सो इट विल बी रो जी एच, ओके। So liquid Q has twice the density than R. Okay. So if this is the density of R, then for Q it should be 2R. Okay, 2 rho R. Okay. G remains the same. At depth X in R, the pressure is due to the liquid is 4 Pascal. And at Q, the pressure is due to, at what depth in the liquid H, the pressure is due to, the liquid is 7 Pascal. Okay. So they gave us the pressure in Q as 7 Pascal, 7 kilopascal, but they are asking the depth, okay? They are asking this H, okay? And they also mentioned that the pressure in R is 4 kilopascal. The density of R is just rho R in G, and H is going to be the X, okay? So, so just making g rho g the subject from both the equations. So 7 kilopascal divided by 2h, okay, is equals to rho, the density of R times g, okay, from the first one, and 4k over rho R g is sorry, the h over rho R and g, okay. Now you can equate the two things. So 7k over 2h is equals to 4k over x. Okay, k and k goes off. Just make h the subject, so it will be um, 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 7x divided by 4 to the 8. 8 is equals to h, right? समझ लो ना, h को मैं से वहाँ ले गया, 4 और सब Yes, बाकी सब चीज़ों को यहाँ पे ले आया, सही। So 7x divided by 7x फाइन, पी आर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। yes, sir. ओके, आ जाओ ये कर लो। Atmospheric pressure at sea level has a value of 100 kilopascals. The density of water is 1020 kg meter inverse cube. At which depth in the sea would the total pressure be 110 kilopascals? Hmm. So if at this point the surface point has 10 kilopascal, and they're saying there should be some depth
let's say H, and at that depth, um, the pressure is 110 kilopascal. Okay, so to find that, you just need to find the difference in pressure that is caused by this H. Okay, because we are not interested in the air. Okay, right? So the delta pressure is equal to rho G and H. Okay, and the delta, the change in pressure is 10 K, right? 10 K. Okay, and rho is 1020, and G is just 9.81, and H is to be found. निकाल दो प्लीज कितना आता है. Then what will be K? That is kilopascal. Yes. 9.9 exponent negative 4. 9. Way. How it could be -4? ऊपर 3 है. और हा 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 हा. They're asking in meter, kilopascal, each and everything is correct. एक मिनट, एक चीज मुझे देखने दो. So 100 exponent negative 100 exponent 3. Wait, so the 10 kilopascals Mm-hmm. equals to Mm-hmm. 10,000 pascals. Okay. Yes. So this is what I wrote down. No. No, so now I'm getting 0.99. 0.99 meaning it's actually 1 meter, and then it should be A and not C. We are getting A, and the answer says it's C. How? अच्छा जी, क्या हो सकता है? The atmospheric pressure, the density, the C. हमने सब चीजें सही ली है यार. ओके, ए करते हैं, देख लेंगे इसके आंसर को क्या आता है. फाइन, चलो आगे आ जाओ. आगे चलिए, बस करें, चलिए गाड़ी चलिए. So we can continue, it's fine. ओके ओके फाइन, आ जाओ. अच्छा, मुझे एक मिनट जरा ये भी देख Yes. लें. November 14, 12. ओके. पढ़ लो जरा, पढ़ लो पढ़ लो. A sealed cylindrical steel can is situated below the surface of water. What is the origin of the upness that acts on the can? हम्म, क्या कह दोगे? यस, उसका ए ऊपर वाले का सही है ना, सी नहीं है. चलो. निकाल दो प्लीज, क्या क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं कह रहे, मुझे कहना पड़ेगा. Sir, I guess it's A then, because all of them are wrong except A. Okay, the air pressure in the cane is less than the water pressure outside the cane. uh the average density of the air in the stream is less than the density of the water. It should be greater ना, तभी तो वो फ्लोट कर सिंक करेगा. चलो फाइन, ये हो गया. चलो आगे चलते हैं, ये कर लो. The diagram shows two liquids labeled P and Q which do not mix. The liquid are in equilibrium in an open U tube. What is the ratio? What is the ratio density of P over density of Q? Hmm, टाइट जनाब. सो देखो, we can consider either this level or this level. Okay, you have to consider either of the level to start the pressure working with. Okay, so अगर तो आप ऊपर वाला कंसिडर कर दो, then liquid Q स्किप हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, right? So we have to consider this pressure level. Okay, so if we consider that, so the pressure in P would be rho, the density of P, which is the density of P times G, or remains the same, times H, going to be 2x. Okay, 2x, and the pressure due to Q is going to be rho
of Q times G remains the same times X only. So when you divide, so pressure, um, when you divide the two pressure, so you will get, acha, so the pressure at this point, like this is a point where the two pressure would be same, right? Um, so you'll get one from this side, and that would be rho density of P times 2 of X divided by the density of Q, the density of, come on, the density of Q times G times H, X, G and G goes off, X and S goes off, right? Make the subject. So 1 over 2 is equals to rho of P divided by rho of Q. Okay, getting? समझता है कि नहीं समझता है? Yes, sir, I got it. फाइन, चलो। अच्छा, अब ये बहुत पुराना हो चुका है, ये सर हो जाएगा आपको, मतलब डेंसिटी उन्होंने डिफरेंट दी हुई है, सही है। वो अपथरस पूछ रहे हैं कि अपथरस जो है वो क्यों होगा। सो ये अपथरस सेम होता है, अपथरस डिपेंड करता है उस पर, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सेम वॉल्यूम में तो अपथरस सेम होने वाला है। सही, अपथरस डिफरेंट नहीं होगा किसी का भी, अपथरस सबका सेम होगा, राइट? अच्छा जी, ये कर लो। अब यार ये भी बड़ा गंदा क्वेश्चन है, कर ले। चलो कर ले, दो क्वेश्चन करते हैं फिर एंड करते हैं। सही है, ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद Okay, एंड sir, करते हैं। that's fine. चलो, आ जाओ। A W-shaped tube contains two amounts of mercury, each open to the atmosphere. Air at pressure P is trapped in between them. The diagram shows two vertical distance x and y. जनाब। Atmospheric pressure is equal to the pressure that would be exerted by a column of mercury of height 760 millimeters. At pressure P is the pressure P is expressed in this way. Which values of x, y, and p are possible? जनाब, क्या करेंगे? So what are they asking you, John? अबे लो। So, so basically they give some unknown variable x, y, p, x, y, and p, and they are asking you to find those variables x, y, and p. फाइन। तो अगेन अगर हम इसमें कोई एक कॉमन पॉइंट ले लें। अच्छा जनाब, चलो, इफ़ आई कंसिडर दिस एज माई कॉमन पॉइंट, ओके, एंड मैंने इसके लिए अलग काम करना है, मतलब राइट वाला अलग है, लेफ्ट वाला अलग है, एंड फॉर बोथ ऑफ देम आई एम सेपरेटिंग, और आई एम जस्ट कटिंग इनटू हाफ, ताकि मेरे पास सिस्टम आराम से बन पाए, राइट? सो इफ आई एम वर्किंग एट दिस हाइट, सो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा, दैट वुड बी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर, राइट, प्लस ड्यू टू दिस मच ऑफ डेप्थ, ओके। सो प्रेशर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू, यहाँ पे जो डेप्थ आ रही है वो 50 मिलीमीटर आ रही है, सही है, यानी रो जी एन 50 मिलीमीटर, ओके। चलो ये आ रही है। एक और चीज़, एक और चीज़ क्या है? डेंसिटी इन्होंने दे रखी है, कुछ बताया? कुछ कुछ भी नहीं बताया हुआ। लो, भूखा नंगा छोड़ दिया, ओहो। चलो कोई बात नहीं, फाइन। सो ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट के लिए काम करें, अगर हम इस पॉइंट के लिए काम करें, सो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर आने वाला है, दैट वुड बी ड्यू टू दिस प्रेशर पी एंड दिस मच ऑफ लिक्विड, ओके। सो एंड दैट शुड बी इक्वल, राइट? सो ये हमारे पास हो जाएगा, um, 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 the 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 air pressure, atmospheric pressure, air at pressure P, okay, fine, P plus this much of depth, so rho G and H में आपके पास क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट कितनी होने वाली है? how much? Okay, so the How whole did you is get it? 50, the whole is 50, the whole is 50. Okay, when you subtract the x, so you'll get this height, okay, It'll be 50 minus x. माइनस एक्स, परफेक्ट, सही। सो मेरे पास एक 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 इक्वेशन भी बन रही है, प्रेशर ऑफ द एयर प्लस रो जी एंड एच इज 50, राइट, इज इक्वल्स टू पी
प्लस रो जी टाइम्स 50 माइनस एच। ओके, ये बन गई एक की इक्वेशन। दूसरे की बना लेते हैं। सो यू हैव टू कंसिडर द सेम लेवल। ओके, सो अगर सेम लेवल पे हम बात कर रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ की बनाऊँ, अगर मैं यहाँ की इक्वेशन बनाऊँ, सो एट दिस साइड देयर विल ओनली बी द प्रेशर पी एक्टिंग, एंड एट द अदर साइड देयर विल बी द प्रेशर of the air, like the atmospheric pressure, plus rho, rho, g, and h will going to be this length. Okay, so you have to do 50 minus y. आप समझ पा रहे हो, right? Yes, sir. Perfect. So बस अब हमें जो है वो substitution करना है. We can make t the subject, and we can find x and y. तीन, अब तीन वेरिएबल है, चार चीज़ें दी हुई है कद्दू में। अच्छा, दो दो इक्वेशन है, चार चीज़ें, फाइन, चलो कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। सो सो प्रेशर ऑफ द एयर, सही है, प्लस रो जी इंटू 50, राइट, एंड इन प्लेस ऑफ पी आई एम जस्ट राइटिंग द होल थिंग। ओके, सो प्रेशर ऑफ द Okay. एयर प्लस रो जी एंड 50 माइनस वाई प्लस रो जी एंड 50 माइनस एक्स। सही ना, घिच पिच तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. I understood. अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, अब आपके पास जो चीज़ पीछे बच रही होगी वो यहाँ पे बच रहा होगा, रो जी एन 50, सही है, या हम इसको, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सो 50 रो जी, सही है, एंड इज इक्वल्स टू रो जी टाइम्स 50 माइनस वाई, सही है, प्लस रो जी टाइम्स 50 minus x. Okay, so I can cancel the rho g from all of the side, so I'll be left with 50 is equals to 50 minus y plus 50 minus x. Okay, so 100, when I take the 100 to that side, so I'll be left with negative 50 is equals to y minus x, minus y minus x. Okay, so it would be y plus x is equals to 50। आप समझ लो? Yes, sir. सही है, सो हमें ये पता चल गया दैट द समीशन ऑफ द टू थिंग्स शुड बी, अबे है यार, अच्छा चलो फाइन, Sir, they're ठीक है। all 50 नहीं बे, ऐसा नहीं है, एक नहीं है। except D. ओके, D and A are not. एक्सेप्ट, ओके फाइन फाइन फाइन, चलो, ये नहीं है, राइट। सो अब हम अम, क्या कर सकते हैं? सो चलो कोई और चीज़, कोई और जुगाड़ लगाते हैं। सो अच्छा चलो यहाँ से लॉजिक लगा लेते हैं ना, सो एक्स शुड बी ग्रेटर एंड वाई शुड बी स्मॉलर। क्या बोलते हो? एक्स शुड बी स्मॉलर एंड वाई शुड बी ग्रेटर, राइट, एक्स शुड बी स्मॉलर एंड वाई Yes, शुड बी yes, yes. ग्रेटर, X स्ट्रेट should अवे, be smaller. है ना? इट्स लाइक विजिबल इन द डायग्राम। Yes. फाइन, ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। आप समझ रहे हो ना, इससे ऐसे कॉलम वाली क्वेश्चन किस तरह से करने हो, लाइक यू हैव टू ब्रेक Yes, इनटू yes, टू sir. I got it. एंड सारे प्रेशर को इक्वेट कर देना है, सही। अच्छा जनाब, पढ़ लो, रीड कर लो प्लीज। A U-tube closed at one end contains mercury. Air at pressure of 5 exponent 4 Pascal is trapped at the closed end. The other end is open to the atmosphere and is fitted with a piston of mass 5 kg and a cross-sectional area of 5 exponent negative 4 meter square. The density of mercury is 13,600 kg meter inverse cube and atmospheric pressure is 1.01 exponent 5 pascals. What is the height of H of the mercury column? जनाब फाइन, सो अब आपको जो लेवल लेना है वो आप ये वाला लेवल ले लो, राइट, हाफ कर दो। अब आप प्रेशर देख लो, सही है, सो प्रेशर ड्यू टू द पिस्टन एंड प्रेशर ड्यू टू द दिस मच हाइट ऑफ लिक्विड प्लस द एयर ट्रैप should be equal. Okay, so it's Okay. basically going to be the pressure of the piston,
should be equal to the pressure due to the liquid plus the pressure due to the air. Okay. Now the pressure due to piston is just force upon area, and force over here is they just give us a mass, so we can convert it into force. 5 into 9.81, 9.81 to get the force, and the area given as 5 exponent negative 4. Okay. And the pressure so the pressure at the right side would be rho, which is 1360 times 9.81, right, times h plus the value given as 5 exponent 4. Okay. So just take everything right there. So 5 into 9.81 divided by 5 exponent negative 4, and then you have to subtract that with minus 5 exponent 4. Okay. And then you have to divide the whole thing with 13,600 into 9.81, and this will give you your age. Okay. Put the whole thing in your calculator and get the answer. Yes, how much you're getting? So 0.36. जीरो आए? अबे ऐसा मत बोल यार. पक्का? Yes. आई है. नहीं नहीं नहीं, मेरी कैलकुलेशन में कैसे गलती हो सकती है? 5 into 9 point, let me try. 5 into 9.81 and okay, divided by 5 exponent negative 4 and bracket, fine, and then minus 5 exponent 4 divided by 1360 into 9.81. Oops. Yeah, I'm getting the 36 centimeter. How? कुछ मिस किया क्या? अरे यार, there is also the atmospheric pressure acting ना, इतना यहाँ पे, समझ रहे हो? So piston plus atmospheric pressure. Okay. So okay, fine, that's the problem. So just add 1 exponent 5 with it, and you're getting 110. Mhm. So for this question, to find the pressure at x, you have to consider this whole distance, this whole depth, and to find the pressure at y, you have to consider this depth only. Okay. This is the PG Yep. bracket HB minus HT or something, right? Like the Yep. two heights. Okay. Actually no, or you can find that as well. So pressure is equals to G. Rho G remains the same, and H2 is 2.35, and H1 is just 2 meter. Okay. So when you put in the value, so the density of the water is 1000 as given, and 9.81 and 2.5, 2.35 mm, so you'll get 0.35. Okay. So how much you're getting? Hmm. It's 3,433.5. Okay, so B.
Okay, Yeah. 3.4 K. fine. No consequence. Okay, Gulmina, you have to try this one. A U tube has one arm of area of cross section A, another of cross section 4A. The tube contains water of density 1000 kilogram per meter cube and oil of density 850 um, kilogram per meter cube as shown. The column of oil on top of the water in the left hand arm is of length 30 centimeters. What is the difference in height x between the levels in the two arms of the tube? Hmm. Acha ji. So you have to make the two equations, just split that, and now you can consider any common point. Either take this one or take that one. Okay, so the easy way is to take the other one, this one. Okay, you can take any one of the point, any of the point, but I'm taking this one. Okay, so the total pressure um due to this much of height by the oil would be the total pressure, sorry, the total pressure at this arm would be due to the pressure of the oil and plus the atmospheric pressure, right? And on the other side it would be due to the atmospheric pressure. So do we have to consider the atmospheric pressure? They also mention the density of the liquid, so if they are mentioning the density of the liquid, so it would be better. Okay, so if I put the total pressure right here, then both the pressure of the air get cancelled out, so I'll get zero. Okay, so if I rather take this length, so this will be the, okay, this equation remains the same, and the total pressure would be the pressure due to air plus the pressure due to the water due to that much of height. Okay, now if I equate the two things, so pressure in the oil plus pressure of the air should be equal to the pressure of the air plus the pressure of the water. सही गुलमीना ये इक्वेशन समझ में आती है? Yes, Gulmeena. Yes, sir. Okay, so now the pressure of the oil is due to rho g and h. Okay, so the density of the oil is 850. Okay, and g is 9.81. Okay, and h is 30 centimeter. See, so they're asking in centimeter as the final answer, so I'm not converting. So 30. Okay, and the pressure due to water is the density of the water is 1000 and 9.81, and the height of the water, the depth of the water is this, which is 30, which is 30 minus 6. Okay, 30 minus 6. सर Okay, हमने डेंसिटी को चेंज नहीं करना उसका वैल्यू की क्या मतलब, की दो, वाटर और ऑयल की ली दो अलग अलग, ये ऑयल की आ गई, वाटर नहीं की आ मेरा मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और हम्म फाइनल आंसर सेंटीमीटर्स में है तो उसका कोई कन्वर्शन नहीं करना नहीं, फायदा नहीं होगा. ठीक है सर ओके, सो अगर हम सॉल्व करें, सो दिस एंड दिस गोज ऑफ, एंड ये शायद हो जाए. चलो कन्वर्ट कर लेते हैं. Instead of converting density, we convert the length. Okay, so 850 in divided by 1000. Okay, into so it's 30. If you convert it, you'll get 0 0.3. Okay, and it equals to 0 0.3 minus x. Okay, so just take x to the other side, you will get 0 0.3, right? And minus 850 divided by 1000 into 0 0.3. जरा बता दो कितना आ रहा है. ठीक है 0.045 0.045. Okay, and now if you convert it into centimeters, so you'll get 4.5. Okay, yes, सही है सर perfect.
हम्म, सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं वर्किंग की स्क्रीनशॉट दे रही हूँ okay, चाहिए थैंक यू सर चलिए. Um, the density. Okay, Imad, try this one. 20. A giant squid of length 20 meter is vertical in seawater with the top of the squid at a depth of 8 meters. The density of seawater is 1050 kg meter cube. What is the difference in pressure between the top and the bottom of the squid? Is that easy, right? You just need to do is a similar question as this one, Upthrust. right? It's not okay, fine. It's basically not actually asking you for the upthrust because upthrust is a force. They're asking the pressure difference, okay? So if you do the pressure difference times volume, you'll get the upthrust in, okay? Okay, just skip it. Try this one. Try this one. So this one? Yes, So 13 or 15? this one. 13. A solid metal cylinder stands on a horizontal surface as shown. The cylinder has length x and cross-sectional area A. The cylinder exerts a pressure P on the surface. The acceleration of free fall is g, which expression gives the density of the metal of the cylinder. Hmm. So what you do? Pressure is equals to force over area, right? And they're asking for the density now. So pressure times area is equals to, you can we can convert the force into mg, okay? And we can also divide g here, so it will be just m, and we can replace m with the density times volume, right? Because density is equals to mass over volume. This is what you know, okay? So density times volume is basically the mass. And if you also know that the volume is um, actually the cross sectional area into height, which is in term of x. So a and a goes off, and when you take to the other side, so it will be in the denominator, and you'll get this one. So b. Okay, am I getting? G. Okay. So just one round more, please. Just last three question. Okay, Imad, Irfan, your turn. My turn? Yes. Okay. The density, one second. The density of air on the Earth decreases almost linearly with height from 1.2 kg meter cube at sea level to 0.474 kg meter cubed at an altitude of 5,000 meter. Atmospheric pressure at the Earth's surface on a particular day is 100,000 pascals. The value of G between the Earth's surface and an altitude of 5,000 meter can be considered to have a constant value of 9.7 meter per second square. What will be the atmospheric pressure at an altitude of 5,000 meters? Hmm. So if you look at so yeah, and at the sea level, so at the sea level the density is 7.4, and at the level of 5,000 altitude, uh, just wait, the value of g between considered constant as, okay, fine, so they also gave you as 9.7. This at the sea level to this, okay, so this at the sea level to 0.74, okay, fine. And now they're asking what will be the atmospheric pressure at an altitude of this much, 5,000 meter. Now,
So pressure is equals to rho gh. Okay. Now the pressure is linearly changing. Okay. So for any linear change in the system, if you consider the mathematics, then you have to apply the integration. Okay. From this point to this point to find the average value. Okay. But we can't do that. Okay. So to get the average density in between the two, we can only or we can easily add the two things and just divide it by 2 to get the average. Okay. So 0.74 plus 1.2 divided by 2. Okay. So this will be the density, the mean density. Okay. And G is 9.7 and H is 5000. Okay. So if we multiply, do you have calculator with you, Irfan, or you left it in school? No, I got a spare. I'm just doing. Okay. Yes, how much? 38024. 3, 8. This is not even the answer. You put in something wrong in the calculator if I put so I'm getting 47530. 47530 as the pressure due to this much density. Okay. Now they're saying at the atmospheric pressure at the Earth's surface on the particular day is 100,000 pascal. Okay. So um Yeah, I did put something different. I got the same 47530. okay, fine. Now they're asking what will be the atmospheric pressure at the at an altitude of this much. Okay, so we are getting they told us that the 100,000 pascal is at the surface. Okay, and we also calculated the pressure due to that much of depth as 47530, right? So the pressure at the top will be due to the subtraction of these two value, right? Because whatever the pressure at this point will be due to the air or the material, the substance on the top of that. Okay. So if you subtract the two value, how much you get? Around 50s, around 50 or 52. So it would be C. If you subtract it with or if you subtract 100,000 pascal of pressure with this value, the value you calculated, so you'll get the answer. Okay, clear? अच्छा जी. सो हमारे पास जो कल आवाम थी, कल में शहीर था और कंसा साहिबा थी और वो थी. सही है. सो कंसा से करवा दें. कंसा जरा रीड कर लोगी प्लीज क्वेश्चन. डोंट से कि खाना खा रही हूँ. कोई बात नहीं ना यार, रीड कर लो बस. दिमाग मेरा मैं चला लूंगा. The diagram shows the brake system of a car. The pipes are filled with incompressible liquid. When a force is applied to the brake pedal, the pressure in the liquid increases and applies a force to each of the four wheels. The area of the piston connected to the brake pedal is 8 centimeters square. The area of each piston connected to the brake is 12. A force of 800 Newton is applied by the foot to the brake pedal. What is the force applied to each brake?
तो इसका मतलब है कि जब आपने फोर्स लगाई होगी इस पे ब्रेक पैडल पे, तो वो फोर्स जो होगा वो प्रेशर के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो प्रेशर जो है वो लिक्विड के थ्रू होता हुआ वो हर पिस्टन पे ट्रांसफर होगा, सही है। तो अगर हम डिजाइन अगर हम देखें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब फोर्स हमारे पास आ रही है 800 न्यूटन की, जो कि हमने उससे अप्लाई किया, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कनेक्टेड टू द ब्रेक पैडल 8। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सही। प्रेशर, अब देखो आपने जो प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर चारों सिस्टम के अंदर वही सेम होने वाला है, ओके। सो आपने इसको इक्वेट कर दिया फोर्स जो कि आपकी पिस्टन पे लग रही होगी ड्यू टू जो कि आपने फुट से लगाई है, और डिवाइडेड बाय जो एक का एरिया है वो आपके पास आ रहा है 12, ओके। सो कंसेप्ट समझ में आया ना? जी। सही है, सो सिंप्लीफाई कर लो। सर फिर से बताना। 1200। 1200। चलो एक मिनट रुको। सर ये क्वेश्चन 12, रिपीट कर सकते हैं दफा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, देखो तुम्हें ये सर कल की कॉन्सेप्ट, क्लास रिपीट कर सकते हैं? कल की क्लास क्या कर सकते हैं? रीकैप थोड़ा। ब्रो प्रेशर पढ़ लेते यार। अच्छा ऐसा करना है, ठीक है। सेम है आईजी। हाँ सेम, तकरीबन सेम है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, प्रेशर वो अप थ्रस्ट, सही है। चलो मैं, डोंट वरी, मैं यहाँ से क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं क्वेश्चन भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। देखो सीन ये हमने प्रेशर में हमने ये पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। इस केस के अंदर ये वाला लग रहा है, जो केस के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना मैं थोड़ी सी रिकैप दे दूंगा, उसके बाद करने, सही है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और उसमें भी तुमने पढ़ा है, आईजीज के अंदर भी पढ़ा है, यहाँ पे भी है, सही है। अच्छा अब यहाँ पे सीन ये, इस क्वेश्चन के अंदर सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है, जो तुम प्रेशर इस पॉइंट पे एग्जर्ट कर रहे हो, सही है, वही प्रेशर जो है वो इन चारों पिस्टन के अंदर जो है वो ट्रेवल होगा, राइट, वही सेम प्रेशर, राइट। जी सर। तो अब आप सबसे पहले वो प्रेशर निकाल लो जो कि आपके पास जो है आप अप्लाई करो, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सो ये, सो प्रेशर आपके पास, फोर्स आप कितनी लगा रहे हो आपको गिवन है इसमें 800 न्यूटन, राइट। सो फोर्स आपने ले ली 800 न्यूटन की, राइट। और एरिया एरिया आपको गिवन है, जो पैडल जिस पे आप जिस पैडल पे आप फोर्स लगा रहे हो 800 न्यूटन, वो आपके पास है 8, राइट। आई एम नॉट कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर, क्योंकि दो दो आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, और ये आ जाएगा 100 पास्कल, ओके। तो इसका मतलब है कि आपने 100 पास्कल का प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। अब वो 100 पास्कल का जो प्रेशर होगा वो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर इधर, राइट, हर जगह पे, सही है। सो वो 100 पास्कल का जब प्रेशर आपके पास ट्रेवल कर रहा होगा, तो आपके पास जो जो आपके पास एक प्लेट है, जो आपके पास एक ब्रेकिंग पिस्टन है, सही है, या हाँ, तो वो उस पे जो है ना, जब वो प्रेशर आएगा 100 पास्कल का, सही है, सो उस पे फोर्स कितनी आएगी वो आपने देखनी है, और उसका जो आपके पास जो एरिया है वो 12 का है, सही है। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 × 100, सही हो गया। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1200, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, अब आप ये कह सकते हो कि भाई सर हमारे पास तो चार पिस्टन लगे हुए हैं, और आप, अगर आपके पास जो इनिशियली आप 100 का प्रेशर जनरेट कर रहे हो, तो चारों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, आपको जो है चारों में वो इक्वली प्रेशर जो है वो जा रहा होगा, क्योंकि आपके पास लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो सेम है, राइट। तो वो जो भी प्रेशर होगा वो इक्वली चारों में लग रहा होगा, राइट। तो ये आपके पास इसकी स्टोरी होगी, समझ में आ गया? चलो जी आगे आ सर। जाओ। अच्छा जी, अच्छा तो ऊपर बस आपने इक्वेट कर दिया ना उन हाँ लोगों जी, को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलो आ जाओ। क्या बोलते हैं, शहीर, शहीर जिंदा हो? जी सर, शहीर, जिंदाबाद। हाँ जरा रीड कर लो प्लीज। A metal cylinder is suspended vertically in equilibrium by a cord. The diagram shows the cylinder in four different positions: P, Q, R, and S. Which statement explains the variation of the tension T in the cord? हम्म, क्या कहते हो, कुछ R आइडिया? क्या आंसर बताओगे? आंसर ही बताओ। कुछ है ध्यान में, बता दो एक भाई। सेकंड।
आप बताए ना, आप टीचर हैं, अब अच्छा स्टार्ट। ऐसा है, अरे क्या बात है, इमोशनल टॉपिक घुमा दी तुमने तो। अच्छा, तो तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम, अच्छा सबसे पहले तो अगर तुम इसको एनालाइज करो तो तुम्हारे पास क्या है, जो एस वाली कंडीशन है उसके अंदर तुम्हारे पास जो भी ब्लॉक है, जो सिलेंडर है जिसको तुमने सस्पेंड किया होगा, तो जो उसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, एग्जैक्टली उतनी टेंशन होने वाली है। ओके, सही है? क्योंकि इसमें तो अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही है पानी के अंदर, हम्म, वो नहीं है, सबमर्ज नहीं है। हाँ। और यहाँ पे उसने कहा हुआ इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, सही है? सो एस के अंदर तो बिल्कुल सिंपल सा केस है कि भाई जो भी टेंशन ऊपर लगेगी वो वेट की वजह से लगने वाली है। ओके, अच्छा जी, अब आ जाओ पहला केस को देखो जो पी वाला है, सही है? पी के अंदर क्या है, वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, राइट? अच्छा जी, टेंशन ऊपर लग रही है। हमने कहा था पानी, जब भी आप किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डालोगे, पानी के अंदर सबमर्ज करोगे, तो पानी एक एडिशनल फोर्स लगाता है जिसको हम अप थ्रस्ट के नाम से देते हैं। ओके, और वो अप थ्रस्ट जो है वो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, ऑलवेज, राइट? अप थ्रस्ट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, सही हो गया? तो अगर पहले केस के अंदर तुम इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, सो तुम्हारे पास जो वेट होगा, सही है, जो कि डाउनवर्ड फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल द अपवर्ड फोर्सेज जो कि अप थ्रस्ट है प्लस टेंशन है, राइट? और क्योंकि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे है, सही है, तो इस वजह से हम इक्वेट कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली क्यू पे भी यही सेम कहानी होने वाली है, सही है? कि देखो, अच्छा तुम कहोगे कि भाई पोजीशन क्या मैटर करेगी या नहीं करेगी, तो देखो, पोजीशन अप थ्रस्ट के अंदर, अप थ्रस्ट जो फोर्स है उससे पोजीशन नहीं मैटर करती। वो अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी वी, सही है? ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, राइट? अगर दो सेम मटेरियल आपने जो है ना पानी के अंदर पानी के अंदर डाले हुए हैं, दोनों दोनों की डायमेंशन सेम है, तो दोनों के ऊपर अपथ्रस्ट सेम लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल तुम्हें सेम लग रहे हैं, तो इस पे भी अपथ्रस्ट सेम लगने वाला है, सही है? डब्ल्यू और यू और टी, सही है, बिल्कुल सेम पहले वाली केस होगा। तो सर तीसरा, वो अब थ्रस्ट हाइट पे डिपेंड नहीं करता? ब्रो, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, तो वॉल्यूम के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाती हैं। So, वॉल्यूम सर लिक्विड का या जो मटेरियल अंदर होता है सॉलिड? नहीं ब्रो, लिक्विड का। देखो बेसिकली ना, आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास एक गिलास है पानी का, आपने उसके अंदर जो है ना आइस क्यूब डाल दिया, सही है, तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही होगा, सही है? जी। तो वो जो ऊपर जो पानी आया है ना, जो आपने जो बर्फ डालने की वजह से जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, सही है, वो अब बर्फ पे प्रेशर लगाएगा ताकि बर्फ ऊपर आए और पानी वापसी नीचे जाए। ओके, समझ पा रहे हो? सर ये क्यू और पी पे सेम प्रेशर लगेगा पहले, क्योंकि पी तो नीचे है गहराई में। देखो, प्रेशर अलग चीज़ है और फोर्स अलग चीज़ है, समझ रहे हो ना भाई? जी। प्रेशर यहाँ पे अल्टीमेटली ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इससे ऊपर मटीरियल, इससे ऊपर क्वांटिटीज लिक्विड की ज़्यादा है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्रेशर क्यू पे कम होने वाला है, आर पे उससे कम होने वाला है, और एस पे कुछ भी नहीं होगा लिक्विड का प्रेशर। ओके, तो प्रेशर तो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ फोर्स की बात करो, तो वो जो फोर्स है जिसको हम अपथ्रस्ट कह रहे हैं जो कि पानी की वजह से आ रही है, राइट, वो फोर्स पी और क्यू पे सेम होने वाली है, राइट? प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन फोर्स जो कि उस प्रेशर की वजह से जनरेट हो रही है वो सेम होने वाली है, क्योंकि वो जो फोर्स है वो बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, दोनों बॉडी तुम्हें सेम टाइप की लग रही है, तो इस वजह से बॉडी चूंकि सेम टाइप की, तो इस वजह से प्रेशर से फोर्स सेम होने वाली है, प्रेशर डिफरेंस हो सकता है। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। अब आर पे देखो, आर पे आपके पास जो है वो आधी बॉडी अंदर है आधी बाहर है, जो बाहर है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, जो अंदर है उसकी कंसिडरेशन होगी। ओके, सो अंदर वाली बॉडी चूंकि आधी है, तो अब इसमें जो अपथ्रस्ट होगा वो कम हो जाएगा, सही है? सो वेट जो भी नीचे वाला होगा वो वेट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, स्टिल इक्वेशन सेम ही बनेगी बट अपथ्रस्ट की वैल्यू इसमें कम होगी, सही? अब आज उसकी इसके वो देखते हैं। तुमसे कह रहा है एट प्यू, एट पी एंड सर एट क्यू, बोलो। क्या कहते हैं? सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दो। इसमें मतलब पी और क्यू बस। ब्रो, पी और क्यू के अंदर आपके पास, आपको बस सिर्फ ये समझना है कि अपथ्रस्ट जो है पी पे और अपथ्रस्ट जो क्यू है उन दोनों पे सेम लग रहा है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट सेम है, राइट? उसने कहा हुआ है कि भाई आपके पास सही, आपके पास एक ही सिलेंडर है, उसको आपको चार पोजीशन पे उसने डिफरेंट पोजीशन पे शो किया हुआ है, सही है? तो अगर तो लिक्विड पूरा पानी के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स सेम लगनी है, राइट? ये मैंने बता दिया। और जब फोर्स सेम लगनी है तो उसकी वजह से आपके पास जो है जो अपथ्रस्ट आने वाला है वो सेम होने वाला है, सही है? तो इक्वेशन आपके पास सेम बन जाएगी अगर आप डब्ल्यू माइनस अच्छा अपथ्रस्ट सर, करोगे, सो फोर्स टेंशन आ और जाएगी। अपथ्रस्ट हर वक्त सेम होगी? से इस केस के अंदर मेरे भाई हर वक्त में नहीं, इस केस के अंदर सिर्फ ये वाले में बस। मतलब क्योंकि ये सेम बॉडी है। हाँ, सेम मतलब बॉडी, डायमेंशन सेम होगी तो अपथ्रस्ट सेम होने वाला है। ओके,
ओके। अच्छा और जी। सर प्रेशर डिफरेंस होगा ना, क्योंकि एक ज्यादा हाँ, गहराई में और यस, एक कम। बिल्कुल 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 होगा। और टेंशन का क्या है? टेंशन आप W माइनस यू से निकाल लोगे, वो टेंशन जो आपने मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर होगी, बस वो टेंशन है। अच्छा अच्छा, ओके। सही है। अच्छा जनाब, तो अब आ जाओ, अब आपके पास ये कह रहे हैं एट P and at Q the tension T in the cord is the same because the difference in pressure between the two, between the top and the bottom is same. ओके, अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि डिफरेंस इन प्रेशर तो डिफरेंट होना चाहिए। नहीं भाई, वो सेम होगा, राइट। प्रेशर की इटसेल्फ वैल्यू, जैसे कि मान लो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ पे लेट से प्रेशर है 10, यहाँ पे है 5, या यहाँ पे ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, सही है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 6। ओके, सो अब आपके पास जो यहाँ पे जो प्रेशर इसको फील हो रहा है वो 6 का हो रहा है, सही है। और यहाँ पे मतलब बॉटम पे इसके प्रेशर 8 10 का आ रहा है, यहाँ पे इसके टॉप पे अगर इसके बॉटम पे ले लो तो इसका तकरीबन इतने का 8 के आसपास आ रहा होगा, राइट। लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब टॉप और बॉटम को जो माइनस करोगे तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ से भी 2 का आ रहा है, और टॉप और बॉटम जब इसको डिफरेंस माइनस करोगे तो यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 2 का आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपथ्रस्ट होती है। ओके, सो प्रेशर डिफरेंस का मतलब है वो आपको अपथ्रस्ट की तरफ जो है वो कर रहा है, सही। तो आपके पास अपथ्रस्ट जो है वो इसके अंदर सेम होने वाली है, सही। ये आपके पास ऑप्शन हो गया, और देखते हैं गलत क्यों है। एट क्यू द टेंशन इन द कॉर्ड इज लेस देन, नहीं ये सही नहीं, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास ये सही है, राइट। अगर अगर तो पहले वाला सही नहीं होता तो फिर दूसरे वाले पे आप सोच ले। अच्छा जी, एट आर द टेंशन इन द कॉर्ड इज लेस देन सर एक एट मिनट फिर पी। से बताना, ए क्या क्यू चीज़? सही है? सर टेंशन टी सेम कैसे है? ब्रो टेंशन इससे आ रही है ना, डब्ल्यू जी। वेट भी आपके पास सेम है, अपथ्रस्ट भी सेम है, पी के अंदर और क्यू के अंदर, तो दोनों चीज़ें सेम है, चेंज नहीं हो रही। सही हो गया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे सही। हो, कहाँ लगे हो? ये मैं 4 दफ़ा समझा मैं चुका हूँ, क्या कहाँ लगे हो? मैं कहीं नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो ओके ओके। सर वो इसमें एरो, इसमें फोर्स को वरना हम एरो से भी देखते हैं ना, इसमें एरो नहीं कंसिडर करेंगे हम कि ब्रो एरो की एरो, लेंथ क्या है। मेरे जान एरो बनाए तो थे, ऊपर रह गए थे ना प्लस का एरो दोनों केस के अंदर। नहीं, जो टी वाला है, टी वाले जो दो दिए मैंने देखे ना, एक टी का एरो वो तो, बड़ा है, एक छोटा है। अरे मेरा बच्चा वो तो स्ट्रिंग बनाई हुई है ना, स्ट्रिंग के ऊपर उसने टी लगाया हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो टेंशन, अगर उससे आप कंपेयर, देखो अगर तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये यहाँ पे टेंशन को फोर्स की टर्म में रेफर किया हुआ है, तो ऐसे नहीं है, सही है। क्योंकि अगर वो टेंशन को फोर्स की टर्म में रेफर करते तो फिर वेट के लिए नीचे एरो भी बना था, राइट। अब थ्रस्ट के लिए भी कहीं एरो बना था, ओके। तो वो उसने नहीं बना के दिया, इसका मतलब है कि टेंशन, ये रोप बेसिकली उसने बनाई हुई है, अब थ्रस्ट वो नहीं है, टेंशन की वेक्टर का एरो नहीं है, सही है। अच्छा जनाब, और अगर सी देख लो, एट आर द टेंशन टी इन द कॉर्ड इज लेस देन एट पी बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जस्ट, नहीं। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, सही है, लेकिन ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के अंदर सेम है, सही है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो अपथ्रस्ट की वजह से आ रहा है। आर पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कम होगा, आर पे जो अपथ्रस्ट होने वाला है वो कम होने वाला है, सही है। और पी पे और क्यू पे जो अपथ्रस्ट होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है, सही है। और अगर आप आ जाओ, एट एस द टेंशन टी इन द कॉर्ड इज ग्रेटर, नहीं, टेंशन टी कम होगा, वेट के बराबर होगा, चलो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, अब तो तुम्हें बताया, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। अच्छा जी, ये करवा लो, रेक्टेंगुलर डेंसिटी, ओके। ये ज़रा ये करवा दो ईशा। क्या सर, ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, rectangular block of lead of density 1.13 into 10 to the power 4 has sides of length 12 centimeter, 15 centimeter, and 10 centimeter. What is the maximum pressure the block can exert when resting on a table? हम्म अह, तो हम उस पे लगाएंगे क्या, प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे? ओके, फोर्स कितनी और एरिया कितना है ना? एरिया तो निकाल सकते हैं, डेंसिटी दी हुई है और फिर हम लोग वॉल्यूम निकाल के एरिया, नहीं वो तो मास निकलेगा। हाँ, सो हम मास निकाल लेते गुड हैं, उससे गुड, वेरी फोर्स गुड, निकाल लेंगे। वेरी गुड। सो आप कह रही और हो कि डेंसिटी आपको दी हुई है 1 3 एक्सपोनेंट 4, सही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सही है। सो मास, मास को मल्टीप्लाई में 9.81 करोगे, ग्रेविटी बन जाएगी, वो फोर्स बन जाएगी, सही है।
सो वॉल्यूम आप में तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, सो 12 इंटू 15 इंटू 10, सही है, और एक्सपोनेंट -6 लगा दो क्योंकि सब सेंटीमीटर के अंदर है, सही है। सो यहाँ से मास आ जाएगा, कितना मास आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं है। अबे यार, मेरे पास भी नहीं है। कोई है अल्लाह का वली, है कोई हमारे पास ऐसा? यस। सर 20340000। ओके, 2034, फाइन। ये आपके पास आ रहा है मास, सही है। सो आपने रख दिया मास 203, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9.81 से, सही है। जी। चलो, सही है, वेट बन जाएगा। अब आपने लेना है मैक्सिमम एरिया, नहीं, आपने लेना है ऐसा एरिया कि जिसमें मैक्सिमम प्रेशर आ जाए, सही है। सो ईशा, कौन सा एरिया लोगी कि जिससे मैक्सिमम प्रेशर आ जाए? मास 20.34 आ रहा है। 20 मास या वेट? मास 20.34 आ रहा है। ओके, यस ईशा, क्या बोल रही हो? सर 15 और 12 लेंगे क्या? 15 और 12 क्यों तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए। है? हाँ। अबे कद्दू, कद्दू, अच्छा, क्या रिलेशन तो मैक्सिमम चेक करो। प्रेशर चाहिए हमें। यस, अच्छा, मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, तो हम स्मॉलेस्ट एरिया लेंगे ना। यस, मैक्सिमम प्रेशर के लिए तो स्मॉलेस्ट एरिया फिर आपको तो चाहिए फिर होगा। 12 और 10 लेंगे। 12 और 10 होगा, बेहतरीन हो गया। सो 12 इंटू 10, और ये आ जाएगा एक्सपोनेंट -4, -4, सही है। और यहाँ पे अगर आपने किया होगा, सो 1.13 सर 2 बार क्यों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई किया 4, 10 से? 12 और 10, बस सही है, एक ही बार है, सॉरी। और इंटू यहाँ पे अगर आप इसको वॉल्यूम की टर्म में लिख लो, तुम लोग जो कर रहे हो, अगर जो तुम लोग ने कैलकुलेशन सही की है तो सही है, नहीं तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो सकता है, सही है। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सो 15 ऊपर आ जाएगा। सो 1.13 एक्सपोनेंट 4, सही है, इंटू 15 एक्सपोनेंट -2, बस ये तुमने कैलकुलेट करना है, कितना बनता है? 15 एक्सपोनेंट -4, सर 16.6। सही है। सर 16, हाँ बोलो बोलो। ये जो इक्वेशन थी फोर्स ओवर एरिया, उसमें फोर्स की जगह क्या किया था हमने? देखो, हमने डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम को यूज किया, और मास निकाला इंटू 9.81 कर दिया, वेट आ गया जो कि फोर्स हमारे पास हो गई, ओके। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ठीक है अच्छा, सर। ये तो हमारे पास आ गया वेट। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने हमने उसे कहा है कि मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, ओके। मैक्सिमम प्रेशर का मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। सो आपने मिनिमम एरिया लेना है, सही है। सो 12 और 15 लोगे मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, 15 10 लोगे वो भी मैक्सिमम देगा, 12 और 10 लोगे तो मिनिमम दे देगा, ओके। सही हो गया, ये दो चीज़ें आ गई आपके पास। अब हमने बस सिर्फ इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया, सही। ऊपर आ गया मास, जो भी आपके पास मास आ रहा था, इंटू 9.81, 9.81 डिवाइडेड बाय जो भी स्मॉलेस्ट एरिया आपके पास बन रहा है, जो कि 12 इंटू 10 बन रहा है, ओके। और एक्सपोनेंट -2, क्लियर हो गया, -4, सॉरी, सही, -2, एक का -2 और दूसरे का -2, -4 हो जाएगा। यस, क्लियर। अच्छा जी, आ जाओ। आगे चलते हैं। ये कर लो, मुबीन करा सकते हो, बल्कि कराओ, रीड करो जरा। A vertical tube closed at one end is immersed in water. A column of air is trapped inside the tube. The density of water is 1000 kg m minus 3. What is the difference between the pressure at the air of the air in the tube and the atmospheric pressure? सही हो गया। अच्छा जनाब, अब देखो इसकी इक्वेशन बनेगी। हमारे पास क्या है, दो सिस्टम है। एक हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से ऊपर लग रहा है, इधर से लग रहा है, सही है, जो कि लिक्विड को पानी को ना नीचे मूव कर रहा है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मूव कर रहा है, सही है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये जो एयर यहाँ पे ट्रैप है, ये दूसरी चीज़ है जो कि ऊपर से नीचे प्रेस कर रही है, सही। ये दो चीज़ें हमारे पास, और तीसरा हमारे पास लिक्विड है, सही।
ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, हमने इन इन तीन चीज़ों को लेके सॉल्व करना है, सही है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास उसे हमसे कहा है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एयर इन द ट्यूब एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। हम सबसे पहले अगर इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन हमारे पास बनाने के लिए ना हमें एक एक कॉमन पॉइंट हम ले लेते हैं, सही है। एक कॉमन एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, मैं ये वाली रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, देखता हूँ इससे सॉल्व होता है नहीं होता, सही, ये रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, सही। हाँ, अगर मैं ये रेफरेंस लाइन लेता तो मेरी एयर स्किप हो जाती, राइट। मैंने ये रेफरेंस लाइन ली, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जितने भी प्रेशर लग रहे हैं मैंने उसको अलग अलग लेने हैं, राइट। राइट वाली साइड को अलग से लूंगा, लेफ्ट वाली साइड अलग से लूंगा, ब्रेक कर लो बीच में से, राइट। यहाँ अलग अलग प्रेशर होगा, उसकी अलग इक्वेशन बनेगी, और रेस्ट ऑफ द सिस्टम के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, ओके। अगर मैं सिर्फ ट्यूब के अंदर की इक्वेशन बनाऊं, तो ट्यूब के अंदर जो है वो सिर्फ एयर जो है वो इस लेवल पे, इस लेवल को कंप्रेस कर रही है, इस लेवल को पुश कर रही है, राइट। सो यहाँ पे जो राइट साइड है वहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ प्रेशर ड्यू टू एयर की फॉर्म में आ रहा है, ओके। और जो राइट साइड पे जो बाहर की तरफ जो प्रेशर है, वो जो टोटल प्रेशर है, वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा है, सही है। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ATM में लिख रहा हूँ, सही है। प्लस ये जो इतना पानी है ना इसके ऊपर जो है, इसकी हाइट की वजह से, इसकी डेप्थ की वजह से प्रेशर आ रहा होगा, राइट। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बताओ जरा, यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तक इक्वेशन में किसी को मसला तो नहीं है, एनीबडी? यस। सर वो आपने स्प्लिट किधर से किया? मैंने स्प्लिट किया हुआ है, एक मिनट। ये स्प्लिट हुआ है, सही है। यहाँ से ये वाला सिस्टम एक है, सही है, और ये वाला सिस्टम एक और है, क्लियर हो गया, जी सर। सही है। और स्प्लिट के बाद एक इक्वेशन ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन ये बन रही है, राइट। अब जो तो प्रेशर राइट तरफ पानी का प्रेशर नहीं होगा? है ना, ये रहा ना, वाटर का प्रेशर आ गया। अच्छा ठीक है। आप इसके ट्यूब के अंदर कह रहे हो पानी का प्रेशर? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा वो राइट तरफ खाली आपने ट्यूब के दी। ओके, तो ये बेसिकली ट्यूब की वैल्यू, सही। ट्यूब में हम पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, पानी के अंदर वाली चीज़ नहीं ले रहे। अगर आप यहाँ पे लोगे, अगर आप इस पॉइंट को लोगे, तो फिर आपका पानी भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट दोनों पे, राइट। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, अब देखो टोटल प्रेशर सेम होने वाला है, सही, क्योंकि जो भी प्रेशर तुम यहाँ से एक्सर्ट करो और जो भी प्रेशर तुम यहाँ से एक्सर्ट करो वो लेवल है, बैलेंस है, ओके। तो अगर हम इनको इक्वेट करें, हम ये कहें कि भाई प्रेशर ड्यू टू एयर, सही है, शुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ATM एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, सही है। उसने क्या कहा, उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इन द एयर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं अगर इसको इधर ले आऊँ, सो प्रेशर ड्यू टू एयर माइनस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, सही, शुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर, राइट। और वो मुझसे ये चीज़ निकालने को बोल रहा है, और ये चीज़ बराबर है प्रेशर ऑफ वाटर के, राइट। तो मैं अगर प्रेशर ऑफ वाटर निकाल लूँ तो मुझे डिफरेंस इन प्रेशर मिल जाएगा, राइट। सर एक मिनट, सर आपने प्रेशर ऑफ एयर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक और प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कैसे किया? देखो प्रेशर दोनों जगह पे सेम लग रहा है, यहाँ से जो ऊपर से पुश हो रहा है, सही है, और जो इधर से पुश हो रहा है वो सेम लग रहा है। किसी भी लेवल पे अगर आप होगे तो वो सेम प्रेशर लग रहा होता है, ओके, सही हो गया। तो ये सेम प्रेशर लगने की वजह से हमने इक्वेट किया। अगर तुम इधर भी खड़े हुए होते ना, अगर मैं ब्लैक पेन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ होता, सही है, सो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेरे पास लग रहा होता और ये जो पानी ऊपर से लग रहा होता, उनका प्रेशर सेम होता, राइट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप होगे, जो भी टोटल प्रेशर होगा एक साइड का, वही टोटल प्रेशर दूसरी साइड का भी लग रहा होगा, ओके। और आपके केस के अंदर अगर अगर तो पानी फ्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि एक साइड पे कम प्रेशर है, दूसरी साइड पे ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, राइट, लेकिन वो केस नहीं होता। क्लियर हो गया। चलो, इस वजह से मैंने इसको इक्वेट किया, और जब मैंने इक्वेट किया तो उसने कहा प्रेशर डिफरेंस निकाल दो, यानी ये चीज़ निकाल दो। सो मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया, सही है। अब इसकी वैल्यू रख दो। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर आपके पास जस्ट ρgh करोगे, और आपके पास आ जाएगा 1000, सही है, इंटू 9.81, सही है। और आपके पास आ जाएगा तीसरी क्या चीज़ है, हमने हाइट लेनी है। अच्छा, हाइट तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक लोगे? हम ये वाली 30। इस डेप्थ की ले रहे हैं, इस पूरी डेप्थ की नहीं, 30 नहीं लोगे, इस पूरे डेप्थ की लोगे। वो एयर के लिए भी हम ऊपर भी लेंगे, एयर तो। ब्रो एयर के लिए नहीं काम करें ना, हम वाटर के लिए काम करें, देखो वाटर के लिए काम कर रहे हैं, समझो। मुझे लगा पी एयर का कर रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, देखो उसका तो, उसकी तो वैल्यू नहीं पता ना हमें, उसकी तो कुछ भी नहीं पता। हाँ जी इ- जी।
ये इस पूरी चीज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो ये काम है। सो 50 एक्सपोनेंट -2, सही है। निकाल दो जरा, कैलकुलेट करो कितना आता है। 4905 490। परफेक्ट। ये तुम लोग क्या आएगा समझ में? नहीं, रहने दो। अबे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, खतरनाक खतरनाक। अब यहाँ पे जो है अब थ्रस्ट की वजह से सॉल्व हो रहा होगा, अगर हम इसको करने की कोशिश करें। और टॉप ऑफ द आइसबर्ग इज एट दिस मच हाइट, नहीं नहीं। और आपके पास डेंसिटी ऑफ द आइस आ रही है, डेंसिटी ऑफ द वाटर आ रही है, सही है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व। अगर मेरे पास जो वेट होगा, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग का मतलब है स्टेशनरी ऑन द लिक्विड, सही है, सरफेस। तो पानी का जो इस आइस का जो वेट होने वाला है, इस आइसबर्ग का जो वेट होने वाला है, सही है, वो किसके बराबर होने वाला है? वो अपथ्रस के बराबर होने वाला है, ओके। अपथ्रस के बराबर होने वाला है वेट जो होने वाला है वो और किसी कोई फोर्स नहीं लग रही है, ओके। कोई पुलिंग फोर्स, कोई पुशिंग फोर्स, कुछ भी नहीं लग रहा। पानी पानी जो है वो इस वॉल्यूम की वजह से उस पर अपथ्रस लगा रहा होगा और नीचे वेट लग रहा है, सही है। और उसने कहा है कि ये आपने निकालना है, सही है। सो अगर हम कहें कि भाई अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम पे, सही है। और अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो रो जी वी होता है, सही। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स ग्रेविटी, सही है, टाइम्स वॉल्यूम। बोलो कौन बोल रहा है? जैसे मैं बोला था मैं जा रहा हूँ। अबे ये बोलने के लिए तूने रोका? हाँ ना, कहाँ जा रहा मैं जा रहा हूँ खाने। है? साथ ले आओ यार, साथ मिलके खा लेंगे। इधर आप बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। अबे ऑनलाइन पे खा लो ना, तुम खाओ, मेरा पेट भर जाएगा, टेंशन नहीं लो। अरे सिर्फ इतना प्यार नहीं बनाए, अच्छा, ऐसा नहीं बहुत नहीं। ज्यादा हो जाए। चलो, एंजॉय करो, खाना खाओ। है सब। सैड है, सैड। नाफिस। अच्छा जी, तो खैर ये मेरे पास आ गया डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे प्लीज ये चीज़ ध्यान में रखना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आनी चाहिए, सही है, ग्रेविटी और वॉल्यूम जो कि लिक्विड ने डिस्प्लेस किया हुआ, जो कि लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है, यानी ये नीचे वाला वॉल्यूम, ये नीचे वाला वॉल्यूम, ओके, इससे ज़्यादा नहीं, ये नीचे वाला वॉल्यूम। और ये वेट जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा एम जी, सही है। सो जी से जी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ जो भी आपके पास है, वाटर ले लोगे, सही है। और यहाँ पे अब आपने लेना है वॉल्यूम, सही है। सो और आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास आएगा, क्योंकि आइसबर्ग के सर्कुलर सिलेंड्रिकल है, तो आप ले लो पाई, या बेस एरिया ले लेते हैं, बेस एरिया ए, सही है, इनटू एच। अब हाइट जो होगी वो मेरे पास ये वाली हाइट होने वाली है, वो मेरे पास जो है ये वाली हाइट होने वाली है, जो कि पानी के अंदर है, राइट, सही है। और ये वाली हाइट मेरे पास आ जाएगी एच, जो कि टोटल है माइनस एच से, सही है। ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब जो मास ऑफ द जो वेट है या जो मास है आइसबर्ग का, वो डेंसिटी, यानी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम से आएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग आएगी, और जहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग का आएगा, ओके। सो जब तुम यहाँ पे डेंसिटी रखोगे, सो डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग आई आ जाएगी, राइट। और वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग तुम्हारे पास है बेस एरिया इंटू आइसबर्ग की जो पूरी हाइट है वो तुम्हारे पास है एच, ओके। ये तुम्हारे पास बन गया इसका रिलेशन, सही है। बेस एरिया से बेस एरिया कैंसिल कर दो, उसको कोई काम नहीं है, सही है। और तुमसे जो है ना वो स्मॉल एच के बारे में पूछ रहे, राइट, व्हाट इज द हाइट एच। तो स्मॉल एच को तुम्हें सब्जेक्ट बनाना है, तो बना लेते हैं भाई। W टाइम्स H माइनस H इज इक्वल्स टू रो आई ऑफ H, सही हो गया।
सो तुम्हारे पास एच को बना लो, सब्जेक्ट बना लो एच को। सो ये रो आई ओवर रो डब्ल्यू, सही हो गया, टाइम्स एच, सही है, इज इक्वल्स टू एच और माइनस एच। ओके, इस माइनस एच को इक्वल टू के उधर भेजो और इस पूरी चीज़ को यहाँ पे ले आओ, सही है। जब इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लाओगे तो ये हो जाएगा रो आई ओवर डब्ल्यू, सही है, टाइम्स एच, सही है, और इस पूरी चीज़ की जगह पे आ जाएगा तुम्हारे पास जस्ट एच, राइट। एच एच कॉमन ले लो, सही है, जब एच कॉमन लोगे सो यहाँ से तुम्हारे पास ये एच ले लिया तुमने कॉमन, सही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास बच जाएगा वन। ओके, तो ये तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन होके ए बन रहा है, ए बन रहा है, ए बन रहा है, सर वो 1 कहाँ से है? कॉमन लिए ब्रो, यहाँ पे भी एच था, यहाँ पे भी एच था, दोनों जगह से कॉमन लिया तो यहाँ पे वन बच गया और वो एच बाहर आ गया, सही हो गया। सही हो गया। सर 1 मार्क के लिए तो टाइम जाएगा, है ना ब्रो, अभी लग रहा है 5 मिनट का चैप्टर कंप्लीट होगा ना तभी तुम्हें 1 मिनट में हो जाएगा ये। इंशाल्लाह। सर कोई टेक्निक है जो ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में उनको दस्ती सॉल्व करे बंद? तुक्का मार। तुक्का तो वो खैर तो नहीं है। मार सकते हो, तुक्का तुक्का तो खैर नहीं मार सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जल्दी तुमसे पिक हो जाएगा, सही है। जल्दी पिक करने के लिए तुम ये कर सकते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी अभी क्योंकि शायद तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तुम्हें इसलिए लग रहा है कि ये समझ में नहीं आएगा, सही है, वरना तुमने इससे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन किए वो तुमसे हुए, सही है। तो प्रैक्टिस की बात है, उसकी टेंशन नहीं लो अभी, सही है। उसके मेरे पास कुछ है मवाद है, मैं तुम्हें अकेले में शेयर करूंगा, डोंट वरी। ठीक सर है। वैसे आज क्लास कितने बजे तक है? यार बस 10-15 मिनट में निपटा दे। सर अकेले से अलग बिजनेस चल रहे हैं आप लोग। अबे मतलब सर अकेले हम से भी मतलब फीस दे रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे है हैं? अब ना। क्या मैं अलग से चेक दूं आपको? अरे कैसी गलत यार, बात की है आपने कि प्लीज अकेले में ही? व्हाट प्लीज इज यार दिस? अकेले। अरे अबे अब हम दो क्या करेंगे और मुजम्मिल हम लोग क्या, फड्डा करो, आपने तो फड्डा मुबीन करो, को। फड्डा करो, जो जो बच जाए ना वो आ जाए फिर अकेले खड्डा में। वड्डा नहीं करूंगा मैं उठवाऊंगा डायरेक्ट। अच्छा ऐसा है, आ जाओ फिर। या आप मेरी धमकी समझे या वार्निंग, इसलिए नहीं वो प्राइवेट बराबर। क्लास देते भाई, दोनों ही तो धमकी उठवाने की होती है धमकी दे रही हो। फिर। तो धमकी दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, चलो चलो, तुम्हें भी अकेले में समझा दूंगा। अच्छा, अकेले का वर्ड हटा लो ना, मतलब तुम ऐसे ही आ जाना यार, अब अकेले वो हो गया, वो बोलते बोलते हो गया अब अकेले यार, छाव में बता दूंगा, सर ये अकेले आप बता अकेले दूंगा हैं, ये। आप। अबे सर मतलब सर के ये साथ क्या ऐसा करूं कुछ हुआ यार है? मैं। सर अकेले हो गए हैं नहीं 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 यार, नहीं। कोई बात नहीं सर, समझ सकता हूँ, समझ अच्छा, सकता हूँ। सही समझ रहे हो, चलो बेहतरीन है। अच्छा जी, चलो खैर, आगे आओ आगे आओ, आगे करते हैं। कौन करा रहा है, कोई है कराने वाला? कोई रीड कर लो यार, हसाम रीड कर लो जरा प्लीज। An object of weight W suspended from a Newton meter. When the object is completely immersed in water, the Newton meter reads P. When the object is completely im- कौन आ गया? लैब नहीं का नहीं सर छापा कोई पड़ गया। नहीं। When the object is completely immersed in oil, पढ़ पढ़ पढ़। सर वो मेरा एक सिनेमाई का मसला है। When the object is completely immersed in oil, the Newton meter reads Q. What is the ratio density of oil over density of water? हम्म। अच्छा जी, कोई तुक नहीं बन रही, सही, कोई तुक नहीं बन रही ना। डेंसिटी दी, डेंसिटी से यहाँ पे रिलेट कैसे करोगे? सो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे आपके पास जो है वेट नीचे लग रहा होगा, राइट। और जो अपथ्रस्ट की जो फोर्स होने वाली है वो आपके पास पी की फॉर्म में आ रही होगी, राइट। और सही, यहाँ पे आपके पास आ रही होगी अपथ्रस्ट, ओके। और अगर आप टेंशन को भी चलो इंक्लूड करना चाहो, तो ये टेंशन को भी अगर आप इंक्लूड करना चाहो, वैसे टेंशन बहुत बहुत माइनर सी होगी, चलो टेंशन को कटा देते हैं, सही है। सो आपके पास जो है, अब ये जो P है यहाँ पे, इधर जो P है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, W माइनस यू, सही है। लेकिन उस केस में मसला हो जाएगा, फिर हमें टेंशन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, यहाँ पे टेंशन आएगी, सही है। सो W, सॉरी W इज इक्वल्स टू U प्लस टी, दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही है, टेंशन अपवर्ड लग रही है और अपथ्रस्ट अपवर्ड लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, सही है।
और आपके पास जो है ये टेंशन को, ये बेसिकली इसके रिजल्टेंट फोर्स को रीड कर रहा होगा, सही है। सो यू डब्ल्यू माइनस यू जो है वो आपके पास पी की फॉर्म में आ रहा होगा, सही है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो डब्ल्यू माइनस यू जो है वो क्यू की फॉर्म में आ रहा होगा, सही है। अच्छा जनाब, अब अगर आप डेंसिटी ऑफ द ऑयल और डेंसिटी ऑफ द वाटर निकालने की कोशिश करो, सो डेंसिटी हमारे पास होती है अम, अब एक तो आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाओगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, सही है। आप उसके बजाय जो है वो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू यानी अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू रो जी और वी लगा लो, सही है। अब आपको पता है ग्रेविटी सेम होने वाली है, सेम ब्लॉक है, वॉल्यूम भी सेम होने वाला है, डेंसिटी लेकिन डिफरेंट होने वाली है क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है, ओके। और आपको पता चल गया है कि फोर्स आपके पास पहले केस के अंदर जो आ रही है वो ये आ रही है, सही है। और दूसरे केस के अंदर आ रही है वो आपके पास ये आ रही है। तो इसको जो है वो हमें अब तक इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस केस में, तो ये पी आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ से क्यू आ जाएगा इधर, और यू को इधर ही रहने दो, सही है। तो अब अगर आप आपने सिंपल डिवाइड करना है, सही है। सो फोर्स अगर आपके पास आप ले सर रहे हो, बोलो। ये इक्वेशन में हमने टी की जगह पी रख दिया ना बस। हाँ बस सिर्फ ये किया है, टेंशन जो है वो वहाँ पे पी के फॉर्म में शो हो रही है, सही है। सही हो गया। ठीक है अच्छा, सर। अब यहाँ पे बस आपने डिवाइड करना है। अगर पहले वाले केस के अंदर देखो तो पहले वाले केस के अंदर जो फोर्स आ रही है वो डब्ल्यू माइनस पी, सही है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर की फॉर्म में आ जाएगी, सही है, और जी और वी ऐसे ही आ जाएगा। दूसरे वाला जो केस है उसके अंदर आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू माइनस क्यू, सही है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल और जी टाइम्स वी, ओके। ये दो चीज़ें आ जाएंगी, सही हो गया। अच्छा, जी और वी दोनों केसेस के अंदर सेम है, वहाँ से सब्जेक्ट बना सकते हो, फिर दोनों को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आसान तरीका है पहले दूसरी वाली इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर दो। अगर दूसरी वाली इक्वेशन को पहले से डिवाइड करोगे सो डब्ल्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल टाइम्स जी टाइम्स वी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स जी टाइम्स वी, ओके। सो दिस एंड दिस गोज ऑफ, सो यू विल बी लेफ्ट विद द ओनली दिस थिंग, ओके, इज इक्वल टू, ये आपके पास बचा, सही हो गया। सो आपके पास डब्ल्यू माइनस ई आर है, सही है। सो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये चीज़ बच रही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई मसला होता है? चलो नहीं होता आगे आ जाओ, आसान से क्वेश्चन आ रहा है, ये आ जाओ। मुजम्मिल ज़रा रीड कर लेगा प्लीज़ भाई। A pipe open at one end floats in a liquid as shown. The cross-sectional area of the pipe is 0.012 meters square. The weight of the pipe is 32 Newton. What is the density of the liquid? क्या ऐसे करेंगे भाई, कुछ बता सकते हो? Um, नहीं समझ नहीं तो नहीं पता, है। चलो करते हैं। देखो, अगर आपने अम, उसने आपको जो है ना क्रॉस सेक्शन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले सिंपल सा सोचो। देखो आपने पानी के अंदर जो है वो एक एक पाइप को अंदर डाल दिए इस तरह से कि वो फ्लोट कर रहा है, सही है। तो फ्लोट करने का मतलब है कि जो पाइप जो प्रेशर पानी पे लगा रहा होगा, जो प्रेशर पानी पाइप पे लगाएगा और सर पानी ये इसने वर्टिकल डाला हुआ है ना पाइप अंदर। हाँ, तो क्या हुआ, जैसे भी डालो। आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखना है कि आपके पास जो है जो पानी पाइप पे प्रेशर लगाएगा और जो प्रेशर जो पाइप पानी पे प्रेशर लगाएगा वो दोनों सेम होने वाले हैं, सही हो गया। सो जो पाइप सर के आवाज प्रेशर, बहुत कट रही है। जी आवाज़ सर। बहुत कट रही है। यार देखो ये हमारे लगे नेक बंदे जो है ना इस्लामाबाद में बैठे, ये सारा उनको काम कमा रहे। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अब सही आ रही है? कुछ थोड़ा बेहतर हुआ? काम चल जाएगा, कुछ गुजारा हो जाएगा? जी अभी सही। चलो, तो अब देखो सीन ये है कि हमारे पास प्रेशर जो कि हमारे पास पाइप लगा रहे हैं, सही है, और वो बराबर होना चाहिए प्रेशर जो आपके पास लिक्विड लगा रहा है, सही हो गया, जो कि बेसिकली अप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट बनता है, सही। सो अब अगर आप देखो कि भाई आपके पास जो है वो जो पाइप है उसका जो प्रेशर आ जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया से आ जाएगा, सही है। और लिक्विड का जो प्रेशर आ जाएगा वो रो जी और वी से आ जाएगा। एच मत लगाना, वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, सही है। या चलो एच लगा दो, जो जी एच, सही है, प्रेशर ही हमने लिखा हुआ है। अच्छा जनाब चलो,
जो फोर्स है, सही है, अब पानी उसने दिया हुआ है द वेट ऑफ द पाइप इज 32 न्यूटन, सही है। सो फोर्स की जगह पे तुमने रिप्लेस कर दिया 32 न्यूटन लिख दिया, सही है। और एरिया एरिया ऑफ द पाइप तुम्हें दिया हुआ है, सही है। एरिया ऑफ द पाइप तुम्हें उसने दे रखा है 0.012, तुमने उसकी जगह पे वो लिख दिया 0.012, ओके। तुमसे उसने डेंसिटी पूछ रखी है, ग्रेविटी को तुम नीचे डिवाइड कर दो यहाँ ले आके, सही है। ये ग्रेविटी यहाँ ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगी 9.81, सही है। और हाइट ऑफ द पाइप तुम्हें दे रखी है, सही है। अब देखो हाइट वो लोगे जो पानी के अंदर है, पूरी हाइट मत ले लेना, क्योंकि पूरी हाइट का काम नहीं है। जो जो ये वाली जो हाइट है जो पानी से बाहर है, ऐसा कोई काम नहीं है, राइट। जो पानी के अंदर है वो उस पर पानी प्रेशर लगाएगा, ओके। सो वो हाइट आपके पास है 0.3 की, सो 0.3 आपके पास यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपके पास पीछे सिर्फ ये बच गया, निकाल दो प्लीज कितना बनता है। 907 आ रहा है मेरा। 907 बी बन रहा है इसका मतलब, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। इब्राहिम जरा ये रीड कर लो प्लीज। इब्राहिम है नहीं है, भाग गया। अबे आवाज से रीड करना भाई। हेलो, हो क्या, कहाँ पे हो? अगर नहीं हो तो एक काम करते हैं। हेलो नहीं, आवाज नहीं आ रही ब्रो। सर, आ रही है? हाँ जी, आ रही आ रही। चलो रीड करो जरा। सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन पर जाना। हम्म। सर ये फिर से समझा दोगे, मैं सो गया था। अबे छोड़ना, ये वीडियो में आ जाएगा, वहाँ देख लियो, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे आओ। सर ये आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, ओके ओके, डन नींद बहुत आ रही है। डन डन डन। रीड कर लो, रीड कर लो पहले। अबे ये एक काम करते हैं ना, किसी और से करवाते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जिनोविया ऐसी बैठी हुई, जिनोविया जरा रीड कर दो प्लीज क्वेश्चन। One end of a U-shaped tube is attached to a gas tap, with its other end open to the atmosphere. It contains water of density 1000 kg meters cube, and the height of both sides of the water column are shown. The atmospheric pressure is 101. What's the pressure of the gas from the gas tap? हम्म। जिनोविया कोई आइडिया किस तरह से करते हैं? ये नहीं जिनोविया। सर, मैंने बस क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा ऐसा है, स्कूल में भी कॉलेज में भी नहीं किया? हाँ नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले इस तरह का जो भी सिस्टम आने वाला है यूट्यूब में, सबसे पहले तो उसको तुमने स्प्लिट करना है, सही, आधे से स्प्लिट कर दो, सही है। और एक तुम्हें रेफरेंस चाहिए होगा, सही है। ये तो तुम इसको रेफरेंस बना लो, ये तो तुम उसको रेफरेंस बना लो, सही है। दोनों में से कोई भी एक को रेफरेंस बना लो, लेकिन बेहतर ये है कि ये वाला रेफरेंस बनेगा, उसके रेफरेंस से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। ऐसा रेफरेंस होना चाहिए कि जिसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इंक्लूड हो जाए, ओके। तो ये मेरे पास आ गया रेफरेंस, सही है। सिस्टम स्प्लिट हो गया, रेफरेंस बन गया। लेफ्ट साइड वाले के लिए अलग इक्वेशन बननी है, राइट साइड वाले के लिए अलग इक्वेशन बननी है, सही है। जो लेफ्ट साइड वाले के लिए जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से होगा? जो प्रेशर गैस का होगा, बस इससे नीचे नहीं जाना आपने, इससे ऊपर देखने की क्या क्या चीज़ें, तो वो आपके पास आ रहा है प्रेशर ऑफ गैस, सही है। अब जो राइट साइड पे आओ, तो राइट साइड पे आपके पास इतना लिक्विड है, इतना लिक्विड है। सो ये लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही, दो प्रेशर आएंगे। सो जो राइट साइड पे टोटल प्रेशर आ रहा है वो दो प्रेशर है, वो आपके पास आ जाएगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, राइट, प्लस जो आपके पास दूसरी चीज़ आ रही है वो आपके पास आ रही होगी ये वाली जो हाइट है उसकी वजह से लिक्विड का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा लिक्विड, सही हो गया। अच्छा जनाब, दोनों को इक्वेट कर दो अब, सही है। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सही है, जो कि आपको दिया हुआ है 101 किलो प्लस लिक्विड आपको दे रखा है, माइनस कर लो हाइट, रो जी एच लगाना है, रो जी और एच लगाना है, सही है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 101 किलो प्लस डेंसिटी आपको दे रखी है 1000, ग्रेविटी है 9.81, और हाइट आपके पास आ रही है
10.2 minus 31.4, so 31.2 and 21.2, सही. So 21.2 एक्सपोनेंट -2, सही. ज़रा कर दो कितना बनता है, दोनों को ऐड करके बताओ, कैलकुलेटर वगैरह है तो निकाल दो जल्दी से. 207972. 207. अबे इतना तो आंसर भी नहीं आ रहा. एक्सपोनेंट -2 लगाया भाई. नहीं सर. 1000 इंटू 9.81 इंटू 21.2 एक्सपोनेंट -2, सही है. 19 आ रहा है, सही है. और प्लस 103 आ रहा है, 103. परफेक्ट, सही हो गया. चलो जी. हम्म. हो गया सर। अच्छा जी, आ जाओ भाई. सो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि a cylindrical block of ice of cross sectional area this much is floating partially submerged in the ice. partially submerged का मतलब है जितना अंदर गया हुआ है उसकी वजह से अब thrust लगेगा ऊपर, राइट. और the density of the sea water is this much. A bhalu of a mass 4 kg sets onto the block of the ice, steps onto the block of the ice. ओके, समझ रहे हो. बड़ी गंदी सूरत हाल है भालू की, लेकिन चलो कोई बात नहीं. और ये आ गया डेंसिटी ऑफ द वाटर. ओके, व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ द आइस सिंक्स अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एप्थरस वाला, सही है. और अगर तुम यहाँ पे देखो, लेट से ये हम वो डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि पानी के अंदर जो है ना वो ब्लॉक समर्ज है. ये डिस्टेंस है डी. ओके, अब तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पास जो है जो वेट होने वाला है डाउनवर्ड, सही है, वो बराबर होने वाला है अप थ्रस्ट के. सही है. अब वेट डाउनवर्ड क्या होगा, ये जो पूरा पोलर बियर ऑफ अ मास 400 केजी एंड जो भी आइसबर्ग है उसका कोई ना कोई मास होगा. सही है, अगर उन्होंने कोई मास मेंशन किया हुआ है, नहीं तो फिर उसी के प्रेशर से काम चलाना पड़ेगा. सही हो गया. सो अप थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट. ओके, और यहाँ पे जो अप थ्रस्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है पानी की वजह से अप थ्रस्ट होगा, जिसको आप कहोगे रो जी वी. सही हो गया. और इज इक्वल्स टू वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जिसको आप कह दोगे एम जी, राइट. लेकिन उसने हाँ मास दे रखा है उसने 400, राइट, इंटू 9.81. सही, ये आ गया आपके पास वेट. सही हो गया. अच्छा जनाब, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर आपको चाहिए होती है, वो उसने दे रखी है, डिवाइड कर दो 1020 से. ओके, ग्रेविटी है 9.81 आ गई. सही है. अच्छा, उसने कहा है कि वॉल्यूम हमारे पास पीछे रह गया. वॉल्यूम तुम्हें पता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट. ओके, सो बेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी बेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें उसने दे रखा है 12 मीटर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 12 मीटर से, राइट. सो पीछे क्या बच गई, हाइट बच गई, और ये वो हाइट होने वाली है जो कि सबमर्ज. ओके, अब तुम पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये वो ही हाइट है जो सबमर्ज है, तो भाई अब थ्रस्ट लगता ही उस हाइट पे जो कि सबमर्ज होती है. ओके, जो बाहर हाइट होती है उस पर नहीं लगता है. ओके, सो निकाल लेते हैं इसको भी. अच्छा जनाब, ये हमारे पास आ गया 400 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.2 इंटू 9.81. सही है. सो आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा, वो गलत हो गया. और 12 इंटू 120 इंटू 9.81, फाइन. सो आई एम गेटिंग 0.033 यानी 3.33 सेंटीमीटर. आई एम गेटिंग बी. परफेक्ट. अच्छा जी, तुमसे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डेंसिटी दिस मच, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सबमर्ज इनटू द लिक्विड surface, liquid of the density this, the upper face of the liquid is at the depth h. Okay, okay, fine. The acceleration, okay, what is the expression gives the magnitude of the upthrust force acting on the liquid. Okay, सो अब थ्रस्ट आपके पास जो है, अब उसने कहा कि रेस्टिंग, सही है, अंदर कहीं पे रुका हुआ है, नॉट मूविंग, राइट. सो वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, सही है, वेट ऑफ द ब्लॉक शुड बी इक्वल टू द अप थ्रस्ट. ओके, अच्छा जनाब, वेट आपके पास आ जाएगा एम जी
सही है। और मास आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मास की जगह पे आपने कोई ना कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा जी, तो वेट, अगर मैं मास को डेंसिटी की टर्म में लिखूं, सो मास बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, राइट। अब ये मास लिक्विड सिलेंडर का मास है, लिक्विड का मास नहीं। लिक्विड का मास जब हम अपथ्रस्ट को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो डेंसिटी होती है उसकी डेंसिटी के मास के अंदर जो है वो लिक्विड का मास आता है। ओके, सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, सही है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सही है। सो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर हमारे पास है रो एल की फॉर्म में उसने दे रखा है, सही है। लिक्विड, सॉरी नहीं, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड डेंसिटी रो सी उसने हमें दे रखा है, सही है, रो सी। अच्छा नहीं, एक मिनट, विच एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स ना, तो इसके लिए सीधा सीधा काम कर सकते हैं हम। अगर अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू रो जी वी, अगर हम लगाएं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा रहे, और हमें पता है कि अपथ्रस्ट जो है वो हमारे पास जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसकी वजह से अपथ्रस्ट आने वाला है, सही है। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सही, जो कि अपथ्रस्ट को वो कर रही है, टाइम्स ग्रेविटी, सही है। और अच्छा जी, टाइम्स वॉल्यूम नहीं दिया हुआ इन्होंने, वॉल्यूम की बजाय क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ ए टाइम्स। अब चूंकि हम अपथ्रस इस पे निकाल रहे हैं और इस पे जो प्रेशर हाइट डिफरेंस आ रहा है वो एक्स का आ रहा है, सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। सही हो गया। और तुम्हारे पास एच एच तो हो नहीं सकता, सही है। पी सी भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम जो है वो लिक्विड की बात कर रहे हो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो अपथ्रस जो होता है वो हमेशा उसके बारे में होता है जो कि लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया होता है, सही। आ जाओ। कहानी आपको दे दी है गैस सिलेंडर, ओके फाइन। अच्छा जी, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं फिर एंड करेंगे। सो द सिलेंडर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, the cylinder has a circular cross section of the diameter this much, the pressure of this, and the piston is initially this much. Okay, fine. The gas is heated, causing the piston to move up so that 35 centimeter of the base, the pressure of the gas remain constant. Fine. What is the work done? तुम्हें पता होना चाहिए कि work done is equals to pressure times change in volume, ये हमने लेक्चर के अंदर देखा था, सही है। सो प्रेशर हमारे पास आ रहा है 102 पास्कल का, सही है। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन हाइट से, राइट, क्योंकि बेस एरिया सेम रहेगा और हाइट आगे चेंज हो रही है, राइट। सो यू आर गेटिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20, व्हाट द हेल, डायमीटर दे रखा है, ओके फाइन। सो 20 डायमीटर दिया हुआ है तो उसको रेडियस के अंदर कन्वर्ट करोगे, पाई आर स्क्वायर से कर लो, सो पाई आर स्क्वायर इज 10, सही है, एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अभी एच बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, चेंज इन वॉल्यूम निकालो, चेंज इन वॉल्यूम इस हाइट डिफरेंस की वजह से आएगा, एंड दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर ओनली इंटू 5 एक्सपोनेंट -2, सही हो गया। कर देते हैं, चलो कर लेते हैं। 102 इंटू पाई इंटू 10 एक्सपोनेंट -2 इंटू 5 एक्सपोनेंट -2, so I am getting 1.6 as my 1.6। अच्छा, एक चीज़ का स्क्वायर है क्या, इस पे होल थिंग स्क्वायर, 0.16 विच इज़ ए, परफेक्ट। चलिए, चलो जी, बस करते हैं।